So many students, come to me. I know many of you are planning to go to Canada. This session is only going to be, this particular session about PG and masters is only going to be for a period of 10 minutes. So don't worry. Then we are going to inch towards IELTS. So this is a very hot debated topic. For example, कि सर मुझे कनाडा पढ़ने तो जाना है, but I am not sure whether I should go for PG or masters, whether I should go for post graduation after completing my bachelor's, or should I go for masters after completing my bachelor's. वैसा ही सवाल आता है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को. 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे पूछते हैं कि सर should I go for diploma programs after 12th, or should I go for bachelor's program. So uh, many of these points discussed over here is also going to be helpful to you while you are taking care of whether you want to go for diploma or bachelor's. तो ये थोड़ा सा hot debated topic है. शायद आपके जहन में भी ये प्रश्न आया होगा कि सर वी आर नॉट श्योर वेदर वी शुड गो फॉर पीजी और मास्टर्स. कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो पहले यही सवाल पूछता है कि सर मेरे को कनाडा तो जाना ही है, but I am not sure whether I should go for PG or masters. Now let me give you a small understanding of what exactly PG course is. So this is the difference between a PG and a master's course in Canada, and I want you people to understand कि ये क्या फर्क है. तो फर्क ये है कि PG courses are going to be for 1 or 2 years. A postgraduate program imparts specific skills and practical knowledge in the chosen field. Let me highlight the importance of specific skills and practical knowledge. And if I talk about vis-a-vis master's course, then it is going to be of 2 years. It can be thesis-based programs that aims to train students to conduct independent research in the chosen field along with coursework. So usually PG courses are going to be of 1 or 2 years, and master's courses are going to be most of the time for 2 years. Okay, so PG courses में कैसे courses हो सकते हैं? So on your left hand side you can see PG courses can be something like operations management, business analytics, supply chain management. अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हो तो artificial intelligence and robotics, बहुत सारे courses. I am not able to enumerate all these courses over here, but I am just writing few of them. So global business management, finance, accounting, electronics and embedded system development, cloud computing, process quality engineering, applied manufacturing management. So these are few examples of the PG courses. अगर आप masters के लिए जाते हो तो it is going to be mechanical engineering, civil engineering, computer engineering, industrial engineering, mechanical materials engineering. MBA होता है जिसमें specialization हो सकता है HR, finance, operations, public health, international relations, etc., etc., etc. So if you look at this courses properly, you'll find out that PG courses are more or less directed to train you, or give you education so that you become you become stronger in one particular field. Masters आपको broad based education देता है. So this is basically the difference between PG courses and masters courses. So दोनों के eligibility criteria क्या है? तो PG courses में ऐसा है कि आपके अगर 50 to 55% है तो आपको एडमिशन मिल सकता है. काफी कॉलेजेस ऐसे भी है which may demand something more, and you can even get admissions with 12 backlogs. अब काफी बच्चे ये कहते हैं सर बैकलॉग्स कौन सा है. नाउ बैकलॉग्स अगर बात करें तो बैकलॉग अगर आपने एक ही सब्जेक्ट में 4 बार मार्क्सिट्स 4 बार फेल हुए हो तो उसको 4 बैकलॉग कहा जाता है. सो अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर मैंने 3 सब्जेक्ट में 15 बार फेल हुआ तो मेरे तो 3 ही बैकलॉग हुए ना. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपने एक ही सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक ही सब्जेक्ट में अगर आपके 4 बार फेल हुए तो उसको 4 बैकलॉग माना जाता है. But having said that, there are few colleges which might even take students with higher backlogs. मैं आपको ये जनरल जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. आपको ऐसा जरूरी नहीं कि 20 बैकलॉग वाला नहीं जा पाएगा. वो भी जा पाएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल इंफॉर्मेशन. उसी के हिसाब से अगर मास्टर्स की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल नहीं चलेगा. बैकलॉग्स बहुत कम होने चाहिए. It is you require minimum 65 to 70%, and very few universities will accept below that. और अगर बैकलॉग्स की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में 4 से ज्यादा केसेस में 4 से ज्यादा बैकलॉग्स होंगे, they would probably not accept your admission. So this is the basic difference between eligibility criteria. अगर फी की बात करें तो पीजी कोर्सेज will be having fees ranging from $16,000 to $18,000. 90% of all the PG courses fees are going to be between $16,000 to $18,000. If you talk about masters, then the master courses की fees जो रहती है वो 18,000 से लेके $28,000. It can even go more. For example, you can have even go more. इससे भी ज्यादा हो सकती है. So for example, हाँ मैं I'll just let me complete general observation. बाद में
आई कैन गिव यू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मास्टर्स की बात करें तो 18,000 से लेके $28,000 तक की फीस, उससे भी ज्यादा हो सकती है। देन फॉर एग्जांपल सर आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट क्या होती है दोनों में? फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पीजी कोर्सेज, द रिक्वायरमेंट एज यू ऑल नो दैट इन कनाडा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स वेरिन यू कैन अप्लाई। मैं ये बताना चाहूंगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, न सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि हमारे आजू बाजू के जो मुल्क है उनकी भी गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ है कि ये एसडीएस प्रोग्राम में बच्चों को कम से कम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने पड़े एंड दे गेट दे कैन अप्लाई। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एसडीएस, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो एसडीएस के लिए है, मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो इफ यू नीड टू गेट 6.5 बैंड विद नो लेस देन 6, अगर आप जाना चाहते हो पीजी कोर्स के लिए, बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं कॉलेजेस में वेरिन यू कैन इवन बी एक्सेप्टेड इफ यू गॉट 6 इन ईच एंड ओवरऑल 6। So this is, you can still take a PG course, but if you are looking for a wide array of options, then I would recommend you to get 6.5 bands with no less than 6 bands. If you are looking for masters, उसमें तो 6.5 bands with minimum 6 bands तो चाहिए ही चाहिए। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो 6.5 बैंड से ज्यादा मांगेगी, so they might ask you for something more, but more often than not you will be requiring 6.5 bands with no less than 6. Okay, now बैचलर्स में रिक्वायरमेंट ये थोड़ा सा फर्क है कि पीजी कोर्सेज में आपकी 3 साल की बैचलर्स डिग्री चल जाएगी। सो इफ यू गॉट डन, इफ यू डन बीकॉम और इफ यू डन बीए फॉर एग्जांपल, और या तो फिर आपने बीसीए किया है, या तो फिर बैचलर्स ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसा कुछ किया है, तो आप पीजी कोर्सेज में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू गो फॉर अ मास्टर्स कोर्स, देन मेनी यूनिवर्सिटीज मे डिमांड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। 3 साल की बैचलर्स डिग्री कुछ ही मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वैलिड है। काफी मास्टर्स प्रोग्राम जो होते हैं यूनिवर्सिटीज वाले, वो 4 साल की बैचलर्स डिग्री आपसे मांगेंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये चीज का आप जरा गौर कीजिए। सर दूसरी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो कॉलेजेस में पीजी कोर्सेज करने जाते हो तो आईएलटीएस ही रिक्वायरमेंट रहती है। मास्टर्स कोर्स में क्योंकि कोविड था, सो इन दिस कोविड टाइम्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेव्ड ऑफ जीआरई एंड जीमेट। आपको शायद पता होगा जीआरई एंड जीमेट एग्जाम के बारे में। जीआरई इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन और जीमेट इज ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो है ये ज्यादातर केसेस में मास्टर्स कोर्सेज में पहले रिक्वायरमेंट थी, but for probably September 2022 and many a times probably for in most of the cases for January 2023 also, इन दोनों की वेव्ड है, मतलब जीआरई और जीमेट देने की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। आप सिर्फ आईएलटीएस देते हो और 6.5 बैंड विद नो लेस देन 6 लाते हो, तो आपको फॉर एग्जांपल यू कैन अप्लाई फॉर अ मास्टर्स कोर्स। ओके सर, दूसरे इंटेक्स कौन से होते हैं? पीजी में इंटेक्स होते हैं सितंबर, जनवरी एंड मई। और लेकिन मई में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। ज्यादा बड़ा इंटेक जो कहा जाता है वो है जनवरी एंड सितंबर। सितंबर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट इंटेक, लेकिन जनवरी में भी काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। मास्टर्स की अगर बात करें तो सितंबर और जनवरी में मेजर इंटेक है। मई बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगे, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में। सो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स, सितंबर एंड जनवरी। वर्क परमिट जो आपके जहन में होगा, सर वर्क परमिट कैसे होगी, तो नियम ये कहता है कि आप 1 साल का अगर कोर्स लेते हो पीजी का, जो कि पीजी में वैलिड है, देन यू गेट अ वर्क परमिट ऑफ 1 ईयर। इफ यू टेक 2 ईयर कोर्स, तो आपको 2 से 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि सर वर्क परमिट कब मिलती है? अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको अभी से ही 5 साल का वीजा नहीं मिलेगा। यू विल ओनली गेट अ वीजा ऑफ 2 ईयर्स स्टूडेंट्स। मतलब जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है उतना ही आपको वीजा मिलता है। आपका कोर्स खत्म होता है उसके 3 महीने पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, एंड देन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यू विल गेट द वर्क परमिट। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का कोर्स है, यू नीड टू मेक श्योर दैट आफ्टर 8 to 9 मंथ्स यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, और उसके बाद आपको 1 साल की वर्क परमिट मिलेगी। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको 1 महीने और 9 महीने के, 1 साल और 9 महीने के बाद आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। मास्टर्स में तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी क्योंकि आपका 2 साल का ही तो कोर्स है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 1 साल का। सो यहाँ पे आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा। काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं 1 साल का कोर्स लेके जाऊं कि 2 साल का कोर्स लेके जाऊं। आप 1 साल का कोर्स अभी लेके जा सकते हो, एंड देन यू कैन अगेन टेक अ 1 ईयर कोर्स गोइंग आफ्टर गोइंग ओवर देयर। तो उससे क्या होगा कि पीजी के 2 सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में आ जाएंगे, एंड योर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो इंक्रीज। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आपको फिर भी 3 साल की वर्क परमिट मिलती ही मिलती है। तो काफी बच्चे ऐसा करते हैं, 1 साल का कोर्स लेके जाते हैं, देन दे गो देयर,
देन दे सी कि एनवायरनमेंट कैसा है, मैंने वहां पे देखा था बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मैं दूसरे साल में ये कोर्स लूंगा। और अगर आप वहां पे जाके फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोर्स लेते हो 1 साल के बाद, तो आपको वीजा मिलना ही मिलना है, मतलब ऐसा है ही नहीं कि उसका वीजा रिफ्यूज होता है। So many a times what students do is that, for example, they take a 1 year course. After studying there for 3 months, they again contact us. हमें वापस कांटेक्ट करते हैं, सर अब मेरा 3 महीने खत्म हो गए हैं, आप मेरा दूसरे साल के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए, मुझे लगता है यहाँ पे आके कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप सर ये कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो मैं ही आपको विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रूपी आई विल गेट इट डन फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ये भी आप करते हैं, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल सर मैं 2 ही साल का कोर्स लेके जाऊं, यू कैन एब्सोल्युटली टेक अ 1 year कोर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन। मास्टर्स में तो आपको 2 साल का ही कोर्स लेके जाना पड़ेगा। ओके, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि इस पे आप जरा सा बिल्कुल ध्यान से देखें। You are more likely to get a job faster in a PG course. PG courses are designed taking into consideration the requirements from the industry. Master's courses cover broad area of study as bachelor's and are designed to do research. Many a times employers find master's degree holder overqualified for initial job. ये जरा सा गौर से देखिए जरा आप, फॉर एग्जाम्पल, या आई वुड नॉट बी एबल, जयमीन आई वुड नॉट बी एबल टू गिव आंसर टू स्पेसिफिक क्वेरीज, प्लीज मुझे पहले जनरलाइज ऑब्जर्वेशन खत्म करने दीजिए। इफ टाइम परमिट्स मैं डेफिनेटली गिव योर आंसर्स, डोंट वरी। क्लियर? ओके, तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि पहले इस चीज को समझे। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपने अगर बैचलर्स किया है तो आपने ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन किया है, यू हैव टेकन ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। इफ यू वांट टू गो इनटू स्पेसिफिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है सर, या तो फिर मुझे फॉर एग्जांपल जाना है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, और रादर इफ यू वांट टू गो इनटू काइनेसोलॉजी, अगर आपने फिजियोथेरेपी किया है, या तो फिर आपको फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो इनटू बायोटेक्नोलॉजी, या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, बीम में किसी ने लिखा बीम में मुझे जाना है, तो अगर इन कोर्सेज में जाना है, देन आई बिलीव दैट द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर अ पीजी कोर्स। मास्टर्स कोर्स में इफ यू वांट टू गो, अगर आप अपने आप को देखते हो कि सर मुझे बाद में पीएचडी करनी है, आई वांट टू टीच इनटू अ यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है और मुझे ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन लेना है, देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स। आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन इंडिया एंड इन अ फॉरेन डेवलप कंट्री लाइक कनाडा और द यूएसए, एक चीज का जरा ध्यान से सोचिएगा कि हमारे वहां पे ऐसा है कि बिकॉज वी डू मास्टर्स, हम अपने पिताजी और माताजी के पैसों से लेके मास्टर्स करते हैं, तो हमारे बैचलर्स और मास्टर्स में कोई गैप नहीं होता, because it is eventually going to be taken care of by our parents. But when you go to a foreign country like the USA, Canada, तो ऐसे केस में, ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर, तो ऐसे केस में ज्यादातर केसेस में आप देखोगे वहां के जो लोकलाइट्स होते हैं, दे डोंट डू बैचलर्स एंड मास्टर्स आई मीन वन आफ्टर ईच अदर, दे विल ऑलवेज हैव अ गैप। दो कारण होते हैं, एक तो बैचलर्स करने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, उससे ये पता चलता है उनको कि एक्चुअली मास्टर्स किस में करना है, नंबर वन। दूसरा, वो 4-5 साल कमाने के लिए लगाते हैं क्योंकि मास्टर्स की फीस ज्यादा होती है। So what they do is that in the span of 4 to 5 years of working, they earn money, because eventually that masters money is not going to be paid by their parents as we have got in India. तो ऐसे केस में वो लोग 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके मास्टर्स करते हैं। तो मास्टर्स करने के लिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जॉब, और यू आर लुकिंग फॉर ए पीएचडी, काफी लोग पीएचडी के लिए शायद जाना चाहते होंगे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू गो, तो ऐसे केस में मास्टर्स कोर्स ऑप्शन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर सीधा ही आप मास्टर्स ले लेते हो, समटाइम्स यू बिकम ओवर क्वालिफाइड। आप जब जॉब मार्केट में उतरते हो तो बच्चे एम्प्लॉयर्स बोलते हैं भाई आपने मास्टर्स तो किया है, बट डू यू हैव द एक्सपीरियंस, यू मे से दैट सर आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस। तो ऐसे केस में कभी कभार ऐसा होता है कि वहां के एम्प्लॉयर्स ओवर क्वालिफाइड मानते हैं आपको, एंड देन समटाइम्स यू फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग द जॉब। तो ऐसे केस में पीजी कोर्सेज करना लाजमी है। तो सर क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई डू फॉर एग्जांपल? तो एक समझना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल ये डिसाइड कर सकते हो आप। सर अगर मैं मास्टर्स लेता हूं तो पीआर के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 5 पॉइंट ज्यादा मिलते हैं आपको इन कंपैरिजन टू पीजी। पीजी अगर करते हो तो आप जब पीआर की फाइल रखते हो तो 15 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप मास्टर्स करते हो तो 20 पॉइंट मिलते हैं। सर तो देखिए अब 5 पॉइंट ज्यादा हो गए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका वहां पे पीआर ये 5 पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं घूमता, आपका पीआर होता है 100-150 पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है उससे पीआर होता है। जैसे कि आपको वहां पे पीआर तभी मिलेगा व्हेन यू गेट अ जॉब। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट यू शुड बेसिकली लुक फॉर अ जॉब, जैसे ही जॉब आपको मिलती है पीआर तुरंत ही मिल जाएगा।
जॉब के कारण आपके 200 पॉइंट मिल जाते हैं. सो व्हेन यू सबमिट योर फाइल एंड यू हैव गॉट अ जॉब, you immediately add 200 points to your tally. So that is very important. PR is permanent residence. परमानेंट रेसिडेंस. आप जब पंकज जब पढ़ने के लिए जाते हो और उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करोगे ना, पीआर इज परमानेंट रेसिडेंस. सिटीजनशिप, उसके बाद सिटीजनशिप आती है. सो व्हेन यू गो देयर तो आपको 200 पॉइंट मिलते हैं इफ यू गेट अ जॉब. सो वो आपको तय करना है स्टूडेंट्स. आई विल नॉट बी द वन हु इज, मेरा काम है आपको सजेशन देना कि सर आपको क्या करना है, आपने क्या करना चाहिए. बट मैं ये मान के चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक, क्योंकि आपको मास्टर्स अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है पीजी, तो आपको मास्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोर्स शायद ही मिलेंगे ही नहीं. तो ऐसे केस में द बेटर ऑप्शन इज टू गो फॉर ए पीजी कोर्स. ओके. और सबसे बड़ी बात यह है कि सर पीजी में कॉस्टिंग मुझे क्या करना चाहिए. तो शायद एक स्लाइड चली गई थी पीजी की, मैंने बताया था कि फीस जो है वो 16,000 से 18,000 डॉलर के बीच में है, और मास्टर्स की फीस 18 से 30,000 35,000 डॉलर के बीच में होती है. तो आपको अपनी फैमिली जो है फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर आई एम विलिंग टू स्पेंड आउट दिस मच ऑफ मनी. मैं बच्चों को ये सलाह देता हूँ यूजुअली कि व्हेन यू डू अ पीजी कोर्स, यू गेट अ 2 इयर्स वर्क परमिट, 3 इयर्स वर्क परमिट, यू बिकम पीआर. पहले काम करो, पीआर बन जाओ, पीआर ले लो. और पीआर हो जाने के बाद यू कैन देन डू अ मास्टर्स. आपका जो सपना है सर मुझे मास्टर्स करना है, वो फिर भी सेटिस्फाई हो सकता है. लेकिन व्हेन यू बिकम अ पीआर, देन व्हाट वुड हैपन इज दैट जो कोर्स आपको 30,000 डॉलर में मिलता है वही कोर्स 7-8 हजार डॉलर में मिलना चालू हो जाएगा. यहाँ पे भी आपको पता है कि एनआरआई के जो पैसे होते हैं वो ज्यादा होते हैं. हमारे लिए कब पैसे कम होते हैं, एनआरआई के लिए वही पैसे 10 गुना 15 गुना ज्यादा होते हैं. द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल ओवर देयर. सो व्हाट यू पीपल कैन डू इज दैट यू कैन डू अ पीजी. अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हर आदमी को, हर लड़के को पीजी के लिए शायद ना कहूं. लुकिंग अपॉन योर प्रोफाइल आई मे सजेस्ट यू अ मास्टर्स. काफी बच्चे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं. I'll start giving them the options probably in a day or two. Pankaj has given, Shravan has given, मेरे पास है लिस्ट पूरा. लेकिन ये सारे बच्चों को दिव्या has given, तो ये बच्चों को मैं ऑप्शंस देना चालू करूंगा. आप खुद सोचिए कि मुझे क्या करना है. इफ यू आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है मुझे, फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशंस में ही जाना है, तो ऐसे केस में यू कैन गो फॉर अ पीजी कोर्स. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ए ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि मास्टर्स इन कंप्यूटिंग या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ मास्टर्स कोर्स. ओके सर, तो ये हो गया. आई होप फॉर एग्जांपल ये क्लियर हो गया आपको कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है. आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू. एनी क्वेश्चंस दैट यू विश टू आस्क स्टूडेंट्स? कोई भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो? Anybody who is willing to ask me any questions, I am willing to give the answers. Okay, छोटा सा सेशन है. या जनश्रुत, क्या लिखा था आपने? आई डोंट रिमेम्बर. हाँ, जनश्रुत ने लिखा था बीम कोर्स आपको पीजी में मिलेगा, मास्टर्स में नहीं मिलेगा. बहुत कम ऑप्शंस होंगे, बीम कोर्स के लिए आपको पीजी जाना पड़ेगा. नईमा पीएचडी के लिए, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर अ पीएचडी, देन आई वुड रिकमेंड दैट पीएचडी यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करेगा. मेरी आपसे गुजारिश है कि यू कैन गो फॉर a PG course and then do a masters over there and then do PhD. PhD बहुत डिफिकल्ट है करना. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. जयमीन इज सेइंग मेरे 50% है फॉर एग्जांपल, तो भी हो सकता है. मैंने बताया था कि ज्यादातर केसेस में फॉर एग्जांपल ज्यादा परसेंटेज मांगते हैं, लेकिन आपको फिर भी ऑप्शंस मिल जाएंगे. पंकज ने, मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल. या दर्शन इज सेइंग सर फॉर सिविल विच कोर्स शुड आई डू गो फॉर. दर्शन, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बहुत बेहतरीन कोर्स है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मास्टर्स करने के बाद वर्षा यू कैन गो फॉर मास्टर्स के बाद आपको पता हो यू कैन डू अ जॉब, यू कैन गो फॉर अ पीएचडी, यू कैन गो इनटू एकेडमिक्स. तो आप ये पीएचडी के बाद मास्टर्स के बाद ये कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस? सॉफ्टवेयर के बाद, या यू कैन गो फॉर अ सॉफ्टवेयर आफ्टर 12th. यू कैन गो फॉर जो कोर्स पीजी में अवेलेबल है वही कोर्स सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है. लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको डिप्लोमा इन फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में मिलेगा ऑप्शंस, डिप्लोमा इन फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग. काफी कोर्सेज है. जो पीजी में कोर्सेज है वही कोर्स लोअर लेवल पे आपको डिप्लोमा में मिल जाएंगे. पीजी स्टूडेंट्स मोर वैल्यूड देन मास्टर्स, ऐसा नहीं है श्रवणी. मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला. जस्ट अ मिनट. मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि पीजी कोर्सेज आर मोर वैल्यूड. दे आर मोर जॉब स्पेसिफिक. पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पीजी कोर्सेज में लास्ट सेमेस्टर में काफी जगह पे कोऑप ऑप्शंस होते हैं. कोऑप मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको जॉब्स की मिल जाती है. ये कोऑप वाला ऑप्शन मास्टर्स में बहुत कम होता है. सो मास्टर्स में थीसिस बेस्ड होता है, जैसे आपने बैचलर्स किया. तो ऐसे केस में आप फर्ज करो चौथे सेमेस्टर में, आप छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि लैम्पटन कॉलेज जो है, या तो फिर ऐसी काफी कॉलेजेस जिसमें चौथे सेमेस्टर में कोऑप प्रोग्राम्स होते हैं.
तो उससे फायदा क्या होता है कि आप उस कंपनी में यू गेट एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद ए लाइव इंडस्ट्री। और ऐसे केस में फॉर एग्जांपल क्या होगा कि आपको वहीं पे जॉब मिल जाएगी। ज्यादातर केसेस में बच्चे जहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं वहीं पे जॉब मिल जाती है। काफी लोगों ने ऐसा पूछा है कि सर मेरे जीटी वाले हैं, तो जीटी वालों को भी मैं कहूंगा ये आपके लिए भी वैलिड है। अगर आप पीआर के लिए वहां पे जाते हो, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज। वहां पे आप पीआर के लिए जाते हो तो भी ये कोर्स कर सकते हो, और ये जो मैंने नॉलेज दिया वो आपको काम लगेगा। यहाँ की डिग्री वहां पे वैलिड नहीं होती फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ जॉब। अगर आपने वहां पे डिग्री छोटा सा पढ़ा, कोर्स कर दिया, तो इट विल हेल्प यू आउट टू गेट अ बेटर जॉब। पीजी यू विल बी गेटिंग जॉब फास्टर, बट डू पीजी गेट द सेम सैलरीज लाइक मास्टर्स? सी इवेंचुअली पंकज, वहां पे सैलरीज इज नॉट रिलेटेड टू पीजी और मास्टर्स, दिस आर रिलेटेड टू योर स्किल्स। अगर आपने स्किल्स बताया, मैंने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू शोकेस माय स्किल्स, आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब। जॉब आपको मिलना डिग्री से नहीं है, जॉब आपको मिलेगी वहां पे फॉर एग्जांपल आपकी स्किल्स दिखाओगे, उससे मिलती है। ओके, देन दर्शन इज सेइंग डिप्लोमा एंड पीजी इज डिफरेंट। यस, डिप्लोमा आपको मिलता है दर्शन 12th के बाद, और पीजी मिलता है आपको बैचलर्स के बाद। एक छोटी सी चीज, क्योंकि दर्शन ने चीज निकाली, तो मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा फॉर एग्जांपल, ज्यादातर केस में होता क्या है, ज्यादातर केस में होता ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक ए मिस्टेक ऑफ सिलेक्टिंग ए डिप्लोमा कोर्स आफ्टर बैचलर्स। बैचलर्स के बाद आपको डिप्लोमा कोर्स नहीं लेना है, बैचलर्स के बाद आपको कम से कम पीजी कोर्स तो लेना ही होगा। डिप्लोमा कोर्सेज आर ओनली फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 12th स्टैंडर्ड। तो कभी कभार क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपके कंसल्टेंट होते हैं, दे आर नॉट अवेयर। तो ऐसे केस में वो लोग ऐसा कर देते हैं कि दे गिव एडमिशन इन योर डिप्लोमा कोर्स। तो उसमें क्या होगा, बैचलर्स करने के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इट विल बी अ कोर्स विच इज लोअर टू द डिग्री दैट यू ऑलरेडी टेकन। वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड के ये चीज का जरा गौर कीजिएगा। ओके, या आई एम इन एमएड इन एजुकेशन, या आई विल गिव द कोर्स नेम, डोंट वरी। आपके लिए यू विल हैव टू सिट टेलर मेड एंड देन आई विल गिव द ऑप्शंस, डोंट वरी। ठीक है, ओके, सो आई लेट अस गो फर्दर। अब आईएलटीएस करते हैं। मैंने सोचा, आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा 10-15 मिनट लूं फॉर जिसमें आपको पता चले कि क्योंकि इवेंचुअली आप पीआर वाले भी काफी होते हैं जिनको ये नॉलेज होनी चाहिए इवेंचुअली। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये चीज आप लोग भी देखें। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि ज्यादातर केसेस में जिसको कनाडा जाना है, जिसको ये प्रॉब्लम्स होती ही होते हैं, इनके ये डिबेट्स होती है। ओके, एनीवे कमिंग बैक टू द सीधा आईएलटीएस पे चलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं सेशन। जस्ट अ मिनट। So let us start with true, false, not given. Sure, sure. I'll take those type of sessions, Ravani. Thank you, Pankaj. Okay, so we'll take with reading, क्योंकि ये सब करने के लिए हमें ये भी तो करना पड़ेगा IELTS में 7.5 बैंड्स। और दूसरी एक बात कहना चाहूंगा सब बच्चों से, try to practice more. मैंने पहले भी कहा था, IELTS is not an examination that you can afford to give again and again. Not because it is stressful, but it is also very costly. I mean, it is not an affordable examination. 15,500 is what you need to shell out every time you give IELTS examinations. So ऐसे केस में मेहनत करो स्टूडेंट्स, एक ही प्रयत्न करो कि एक ही बार में 7.5 आ जाए। इससे आपका ये होगा, वीजा भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपके एक अच्छी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरी बात, एक ही पहले से ही आप आईएलटीएस दे देते हो, उससे फायदा ये रहता है कि आपकी जो वीजा जो है वो आप अप्लाई जल्दी से कर पाओगे। एंड क्योंकि अभी प्रोसेसिंग टाइम बहुत चल रहा है, 3 to 4 months इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर कैनेडा, तो आप जल्दी से फाइल रख पाओगे तो बहुत फायदा होगा। ओके, कमिंग बैक टू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. Let me just give you a brief out. True, false, not given questions require you to identify if information is in text is true, false, and not given. सबसे डिफिकल्ट अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन along with 1 or 2 अदर टाइप्स। ज्यादातर केस में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पैसेज में आते ही आते हैं। यूजुअली कम डाउन इन द पैसेज, मतलब उसमें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कोई बच्चा देखा नहीं है जो बोलता है कि सर मेरे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए नहीं आए। बहुत रेयर होता है लेकिन इट इज वेरी वेरी रेयर। सो यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमने ये पहले भी लिया था। सो आई एम नॉट टेकिंग गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस। यस नो नॉट गिवन में यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ, यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन एंड देन यू नीड टू राइट द आंसर एज यस, नो एंड नॉट गिवन। एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर यस लिखा है तो यस ही लिखे, डोंट राइट ट्रू मेनी टाइम्स, बिकॉज you practice a lot of true false not given and yes no not given. There is sometimes an issue wherein students instead of writing yes may write true, और उसी के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो जरा ध्यान रखिएगा। यस है तो यस, कभी कभार बच्चे ऐसा भी करते हैं, समटाइम्स पीपल डू
राइट, यस के बदले वाई भी लिख देते तो ये भी नहीं चलेगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर। और अगर यहाँ पे लिखा है वाई लिखना है तो आप वाई लिखो, देन डोंट राइट यस। सो you need to read the instructions properly and then you need to give the answer। strategies में इतना याद रहे कि ज्यादातर केस में true false not given sequence में आते हैं। the passage that I'm going to give you right now may not be having the answers in sequence, but in most of the cases the answers are going to be coming in sequence। questions को पहले पढ़े, उसको हाईलाइट कीजिए, कीवर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स जितने हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर सिनोनिम्स, अगर आपने जो कोई ऐसा लगा कीवर्ड है तो कीवर्ड का आपको पता है यू वोंट बी गेटिंग द सिमिलर वर्ड, आई मीन द सेम वर्ड इन द पैराग्राफ, यू माइट बी गेटिंग अ सिनोनिम और अ सिमिलर वर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस को पहले रीड करना है, एक साथ दो क्वेश्चंस को पढ़े ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। अगर आप अपने आप को काबिल बनाते हो कि दो क्वेश्चंस को पढ़ के दोनों के आपको याद रहे, then you are doing very good in true false not given because it helps। मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताया था, the reason is something like this। अगर ये आपका पैराग्राफ है, if this is your paragraph and this are your I mean this is the passage and these are the paragraphs, तो मैंने पहले भी बताया था कि you can start reading from here, लेकिन अगर पहला ही not given है तो बहुत टाइम लगाओगे यहाँ से लेके, बिकॉज आंसर इज नॉट गिवन, दिया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा और उसका आंसर यहाँ पे है, फर्ज करो, तो आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये रहा उसका कीवर्ड, और क्योंकि आंसर सीक्वेंस में आते हैं तो ऑब्वियसली आंसर उसके पहले ही आने चाहिए फर्स्ट का, और है तो नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला हुआ वो नॉट गिवन हुआ। तो इट हेल्प्स, अगर आपने दो क्वेश्चन पढ़ते हो और दोनों को याद रखते हो अच्छी तरह से, इट हेल्प्स यू टू गेट द आंसर्स क्विकली। लेकिन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अगेन, आई मीन यू शुड ओनली रीड वन क्वेश्चन। Okay, so rather than giving you the wasting more time, let me give you a small passage। आपको exactly 15 minutes का time देता हूँ and we'll discuss as well। Questions number 1 to 10, true, false and not given। The time starts now। बहुत अच्छा है। I'll explain करने के बाद भी बहुत मजा आएगा, काफी concepts आपके clear होंगे।
Those who have completed can go through it once again. I'm sure they might have committed few mistakes. Yeah, we'll check the answers. Don't worry. Two minutes more. Hello. Yeah, Rajveer, can you read? Yes, sir. Okay, just a minute. I'll just give you time to do that. We are waiting for the students to. I'm waiting for their affirmation to come, and then I'll ask you to read. Okay. Yes, sir. Okay, Janshrut. Yeah, I'll come to your answer as well. Okay. Yes, everybody. Is it done, students? Okay. So yeah, should we go for checking the answers, everybody? I want a nod from you. Should we go for checking the answers? It's almost 15 minutes if I'm not mistaken. ये राजवीर और जॉब आपने कर दिया खत्म? Yes, sir. Okay, fine. So I want everyone now to pay attention over here. शायद आपका नहीं खत्म हुआ है तो भी आप कोई टेंशन वाली बात नहीं. I'll explain slowly and gradually. So first thing first, whenever you encounter a passage, काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे रीडिंग में दिक्कतें आ रही है. Yeah, I can see the answers coming. Let me check it out first of all. So the first thing that you need to do is read the paragraph. पहले paragraph को read करो. I mean, I understand that you need to read the questions first. लेकिन you can always have a small glance of the paragraph just to have a feel of what the paragraph is going to be. So yeah, Rajveer, can you read the first two lines of every paragraph? Yes, sir. First line, only first line, chalega. The British political scene is dominated by two major parties that have quite different political agendas. Okay, read the second para, first line. The Labour's Party manifest objective is to safeguard the interests of the common working man and woman and in effect give them political representation in parliament. Read the third para, first line. The Conservative Party, on the other hand, Conservative. The Conservative Party, on the other hand, argues that the best way to ensure a fair division of wealth in the country is to allow more freedom to create it. Okay, read the last para, first line. It is surprising, given the current homogeneity of the two major parties, that less attention than elsewhere in Europe is paid to the smaller political parties, such as the Greens and the Liberal Democrats. Okay, fine. So see, students, पहले क्या करें कि when you have a passage, don't get frightened by the length of the passage.
कभी ऐसा होता नहीं है कि इतना डिफिकल्ट हो कि आप कर ही ना पाओ। यूजुअली अगर पैसेज डिफिकल्ट है तो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है या तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर समटाइम्स इजियर, सो यू डोंट नीड टू गेट फ्राइटेंड बाय द टॉपिक ऑफ द पैसेज। और कभी कभार क्या होता है कि आप पहली बार ग्लांस करते हो तो देखने में डिफिकल्ट लगता है, but when you go dig deeper into it, it may not be as difficult as you probably might have thought before. अब पहली बात ये हमने देखा कि पहला जो है उसमें ऐसा लिखा है ब्रिटिश पॉलिटिकल सीन इज डोमिनेटेड बाय टू पार्टीज, मतलब ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है दिस पैराग्राफ माइट बी अबाउट टू पार्टीज एंड हाउ दे वर्क, उनका मैनिफेस्टो क्या है। देन द सेकंड पैराग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट लेबर पार्टी, and in the third paragraph they are talking about conservative party, and finally probably it might be talking about the future. I have not read it properly, I have not, because I have only read the first line, तो शायद भविष्य में क्या करने वाले हैं या तो फिर इनके बारे में शायद टीका टिप्पणी हो सकती है। तो ये चीज हमारे जहन में आ गई कि ये जो पैराग्राफ है, जस्ट बाय रीडिंग 4 लाइंस I have now got to know that this paragraph is about two political parties. The information about Labour Party is given in the second paragraph. The information about Conservative Party is given in the third paragraph. तो ये इससे क्या होगा कि एक फील गुड फैक्टर बनता है कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर लेबर पार्टी है तो आंसर शायद सेकंड पैराग्राफ में है, अगर कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में कुछ है तो आंसर इज गोइंग टू बी इन द थर्ड पैराग्राफ। सो दैट बेसिकली मेक्स माय जॉब मच मोर इजियर। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस, यू कैन एटलीस्ट रीड द फर्स्ट 1 और 2 लाइंस, या तो फिर फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सारे पैराग्राफ की 4-5 पैराग्राफ्स होंगे, तो शायद उसको रीड करने में 15-20 सेकंड से 20-25 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएंगे। सो आई रेकमेंड यू डूइंग दैट। और देखिए ऐसा है, रीडिंग में हर आदमी को अलग अलग तरीका राज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आदमी है उसको ये तरीका राज आया तो बी आदमी को शायद ये तरीका राज ना आए, बट ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेस्टेड वाला है, मैंने खुद ने ये टेस्ट किया हुआ है। हर पैराग्राफ पैसेज में आप पहले एक आध दो लाइन पढ़ के जस्ट टू हैव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, अ माइनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। राजवीर, Britons usually vote for the party they supported early in life. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड कीजिए बिफोर यू जंप ऑन टू द पैसेज। ब्रिटेन ज्यादातर उसी पार्टी को, आप हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में, आई डोंट माइंड, पहले समझे इसको। ब्रिटेन ज्यादातर केस में उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसको उन्होंने पहले सपोर्ट किया है। नाउ इफ यू रीड द लास्ट टू लाइंस, इफ यू रीड द लास्ट टू लाइंस नॉनदलेस से पढ़िए। Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to the party for life. एग्जैक्टली तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ज्यादातर केस में ऐसा है कि ब्रिटेन जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसी पार्टी को ज्यादातर सपोर्ट बाद में भी करते हैं। तो ये चीज मैच हो जाती है, तो इसी के कारण पहले का आंसर जो है इट इज गोइंग टू बी ट्रू। इज इट गेटिंग क्लियर? श्योर, ओके। जहां पे भी दिक्कतें आती है यू कैन ऑलवेज टेल मी, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द सेकंड वन। सेकंड पढ़िए। Radical groups are only found within the Labour Party. रेडिकल मतलब मैं आपको समझा, रेडिकल मतलब ऐसा कि जो ये समझता है कि ये ऐसा ही होता है। आई मीन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ व्हाट रेडिकल मींस, बट लेट अस गो बाय द टर्मिनोलॉजी रेडिकल। और यहाँ पे लिखा है कि रेडिकल ग्रुप्स जो है वो सिर्फ लेबर पार्टी में पाए जाते हैं, आर ओनली फाउंड। व्हेनेवर यू डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ओनली, समवेयर, समटाइम्स, ये बहुत वर्ड्स है जो आपके आंसर को इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रेडिकल ग्रुप्स आर ओनली फाउंड विद इन द लेबर पार्टी, बट इफ यू लुक ओवर हियर, आई एम कैन यू रीड द या इन फैक्ट से पढ़िए। यहाँ पे मेरा कर्सर है राजवीर। Yes, sir. In fact, it would be true to say that both parties consist of conservative, moderate, and radical elements, एग्जैक्टली and their दोनों, या खत्म हो गई बात। सो दोनों पार्टीज में रेडिकल एलिमेंट्स है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा है कि सिर्फ लेबर पार्टी में ही रेडिकल ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस गोइंग टू बी, राजवीर? false ones. Yeah, so second answer is going to be false. I hope everyone is clear with this. Okay, question number 3. Some British voters are confused about who to vote for. Your knowledge of vocabulary will here play a massive role in you getting the answer. काफी ब्रिटिश वोटर्स कंफ्यूज होते हैं कि किसको वोट किया जाए, ये अंडरस्टैंडिंग लेके आप अंदर जाइए। तो यहाँ पे लिखा है रीड दिस, And therefore the general public is often perplexed with about which party to vote for. ओके। सो ज्यादा केस में परप्लेक्स का मतलब है कंफ्यूज। नाउ इवन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज परप्लेक्स, शायद हो सकता है कि आपको ये
शायद एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आ जाए तो, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे यू कैन ऑल्सो ऑलवेज अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इवन इफ यू नॉट अंडरस्टूड द वर्ड. Therefore the general public is often dash about which party to vote for. तो अगर ऊपर से देखेंगे, इनफैक्ट इट वुड बी ट्रू टू से बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज में कंजर्वेटिव भी है, मॉडरेट भी है और रेडिकल एलिमेंट्स में है. एंड देयरफॉर द जनरल पब्लिक इज ऑफ्टन परप्लेक्स्ड, पता नहीं है मुझे उसका मीनिंग, अबाउट विच पार्टी टू वोट फॉर. लेकिन आगे के सेंटेंस में ऐसा है कि दोनों में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, इसलिए काफी लोगों को डैश नहीं पता चलता कि क्या करे. तो ऐसे केस में जाहिर है मैं ऐसे भी मतलब निकालू तो पता चल सकता है कि शायद थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला निकल के आता है. उसी के कारण थर्ड का आंसर जो है वो है ट्रू. सो माय बेसिक मोटो इज टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू दैट इवन इफ यू डोंट नो वर्ड्स, अगर आप वोकैब प्रिपेयर करते हो अपने आप की तो बेहतर है, नहीं कर पाते तो ऊपर नीचे के सेंटेंस पढ़िए, शायद ज्यादातर केस में आपको आंसर्स पता चल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. The Labour Party was formed by the trade unions. Now I want you people to get me the answer of this. What is the answer of the Labour Party was formed by the trade unions? Can anyone tell me what is the answer of this? The Labour Party was formed by the trade unions. What is the answer of this? I want you people to write in the chat box. What is the answer of fourth one? Write in the chat box. Okay, I'm getting answers. Very good. Very good. I'm very happy that majority of you have given the right answers. Okay, so answer यहाँ पे लिखा है the Labour Party was formed by the trade unions. लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, the Labour Party's manifest objective is to safeguard the interest of the common working man and women, and in effect give them political representation in parliament. The party has always had strong connections with the trade unions. पार्टी जो है वो ट्रेड यूनियंस को उसके कनेक्शंस है ट्रेड यूनियन के साथ. बट अगर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि लेबर पार्टी ट्रेड यूनियन से बनी हुई है. ये तय है कि लेबर पार्टी ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करती है, लेकिन देयर इज नो मेंशन दैट इट इज मेड अप ऑफ ट्रेड यूनियंस, एंड देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. सो आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. फिफ्थ पढ़िए. Policies in support of the concept of a welfare society are costly. जो वेलफेयर सोसाइटी की जो पॉलिसीज है वो जो सपोर्ट करती है उसको काफी कबार काफी टाइम पे कॉस्टली हो जाती है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेलफेयर यहाँ पे लिखा है या कहाँ पे लिखा है, कैन यू टेल मी वेयर द आंसर इज. या ये रहा. The main problem is that such socialist agendas are extremely expensive to implement and maintain even in a comparatively wealthy country with a large working. ये जो एजेंडा जो होता है वो जो है यहाँ पे लिखा है श्रवणी कि जो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉस्टली है. अगर कोई वेल्दी कंट्री उसमें भी ये इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉस्टली है, तो यहाँ पे लिखा है पॉलिसीज इन सपोर्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी आर कॉस्टली. उसी के कारण आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. 6 पढ़िए. Welfare-based societies invariably become bankrupt. बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता है. अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे ये पढ़ो वेलफेयर सोसाइटीज, ये रहा वेलफेयर सोसाइटीज. Welfare societies tend towards bankrupt, useless, unless government स्पेंडिंग spending चेक. is kept in अब ये अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 में ऐसा है कि वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज इनवेरिएबली बिकम बैंकरप्ट. वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी जो होती है वो 110% वो बैंकरप्ट हो जाती है. इनवेरिएबली का मतलब होता है कि 100%, मतलब उसका कोई दूसरा है ही नहीं ऑप्शन. वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी बैंकरप्ट ही हो जाती है. इनवेरिएबली का मतलब ही ये निकल के आता है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेलफेयर सोसाइटी टेंड टुवर्ड्स बैंकरप्सी, मतलब बैंकरप्सी होने की संभावना है. अगर मैं टेंड का इस्तेमाल करता हूँ इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज मे बिकम बैंकरप्ट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि वो बैंकरप्ट हो ही जाएगी. जब अगर पैराग्राफ पे इक्वेशन में एक्सट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया जैसे कि इनवेरिएबली, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉल्स. तो 6 का आंसर फॉल्स निकल के आता है. 7th. The Conservative Party was formed after the Labour Party. अब ज्यादातर केस में बच्चे ये लिखते हैं कि लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें पैराग्राफ 2 में लेबर पार्टी का जिक्र किया है, पैराग्राफ 3 में कंजर्वेटिव पार्टी का जिक्र किया है,
लेकिन देयर इज नो मेंशन के कौन सी पार्टी किससे पहले बनी थी, क्योंकि रीडिंग के पैसेज में लेबर पार्टी पहले जिक्र की है और कंजर्वेटिव पार्टी बाद में जिक्र की है। इससे तो हम नहीं कह सकते कि भाई कौन सा पहले कौन सा बाद में है, और उसी के कारण 7th इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। 8th, According to the author, theories do not always work in practice. थियरी कभी कभार प्रैक्टिस में काम नहीं करती, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। इट इज गिवन ओवर हियर, या इट इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे पढ़िए। Practical, of course. प्रैक्टिस ऑफ कोर्स पढ़िए। Practice, of course, may make nonsense of even the best theoretical intentions. एग्जैक्टली, प्रैक्टिस ऑफ कोर्स में मेक नॉनसेंस ऑफ इवन द बेस्ट थियोरेटिकल इंटेंशंस, मतलब कोई भी चीज को प्रैक्टिकली की जाए तो एक अच्छी थियोरी को भी नॉनसेंस साबित कर सकती है। और यही यहाँ पे लिखा है कि थियरीज डू नॉट ऑलवेज वर्क इन प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता थियरीज विल नॉट वर्क इन प्रैक्टिस तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे भी एक माइल्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है कि ऐसा होता है कि कभी कभार थियरी में जो प्रैक्टिकली जो थियरी में हमने सोचा था वो शायद कारगर नहीं होती, तो उसी के कारण 8 का आंसर है ट्रू। 9th, The green parties are a lot smaller in European countries. अगर यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, या इट इज सरप्राइजिंग से पढ़िए। It is surprising given the current homogeneity of the two major parties that the less attention than elsewhere in Europe is paid to the smaller political parties such as the Green and the Liberal Democrats. Exactly. हाँ, तो ये ग्रीन और लिबरल डेमोक्रेट्स है, वो स्मॉलर पार्टीज है। लेकिन क्या ऐसा लिखा है कि ग्रीन पार्टी ज्यादा स्मॉल है इन यूरोपियन कंट्रीज? नो, स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका कंपैरिजन आगे बढ़ा है कि भाई वो ज्यादा स्मॉल है। तो ऐसा कभी कभार आता है कि रमेश एंड सुरेश आर स्मॉलर, लेकिन क्वेश्चन में आता है रमेश इज लॉट मोर स्मॉलर देन सुरेश, तो इसका आंसर नॉट गिवन आएगा क्योंकि उसका जिक्र नहीं है पैराग्राफ में। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ 9th इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। 10th, The smaller parties are only concerned about the environment. द स्मॉलर पार्टी are only concerned about the environment। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, ये बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको पढ़े जरा। द ग्रीन पार्टी, The Green Party, for example, is almost solely concerned with the environment. ओके, सो यहाँ पे लिखा है सोली कंसर्न। कैन यू टेल मी राजवीर के ऑलमोस्ट सोली कंसर्न का मतलब क्या होता है? Sir, means not much involved. ऑलमोस्ट सोली कंसर्न मतलब कि ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? Most means थोड़ा सा, नहीं, ज्यादा से मतलब ज्यादातर, ज्यादा तक, लेकिन 100% नहीं। कैन ऑलमोस्ट बी 100%? आई एम ऑलमोस्ट, मोस्टली, या श्रवणी हैज गिवन अ वेरी नाइस आंसर। मोस्टली, ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर केसेस में। और यहाँ पे लिखा है 10th में द स्मॉलर पार्टीज आर ओनली कंसर्न। ओनली कंसर्न मतलब 100% कंसर्न हुआ एनवायरमेंट के बारे में 100। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर पैराग्राफ में ऐसा दिया है कि शायद हो सकता है, शायद नहीं, मोस्टली, मेनली, प्रोबेबली, पॉसिबली, और क्वेश्चन में दिया ऐसा ही होगा, द आंसर ऑफ 10th इज देयरफॉर गोइंग टू बी फॉल्स। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सो ये रहे आपके आंसर्स। दिस इज योर आंसर गोइंग टू बी। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इफ यू वांट टू रेफर दिस इन द फ्यूचर, आप इसको वापस रेफर कीजिए। अगर वापस इसमें कोई भी डाउट्स है तो वापस आप मुझे पूछ सकते हो। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? एंड डोंट गो अवे। हमें और एक चीज करनी है, मैं चाहूंगा आप सब लोग रुके, क्योंकि मैंने वो पीजी और मास्टर्स वाला लिया था तो 15-20 मिनट उसमें चले गए थे। So I would recommend that don't go away. Yeah, Pankaj, you wanted to ask me one question? Yeah, you are talking about the 9th one. Okay, let me then yeah. Liberal, I'm not getting exactly. The smaller parties are only concerned about the environment, लेकिन यहाँ पे जो है, yeah, so that is basically यहाँ पे लिखा है ना, moreover when it comes to casting, they have mentioned example दिया है, green party for example. So again they have not spoken directly about green party, but उन्होंने ऐसा लिखा है smaller, यहाँ पे क्वेश्चन में है सारी smaller parties को देख लिया है, तो उसमें से अगर एक ग्रीन पार्टी की बात करें तो वो जो है वो तो सोलली कंसर्न है, तो अगर एक पार्टी का भी ले तो भी फॉल्स हुआ ना पंकज। तो दैट्स द रीजन आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स। The Labour Party was formed by the trade unions. Yeah, but that's true. But there is no mention about that. हाँ, फोर्थ का आंसर नॉट गिवन है। हाँ, सॉरी, द आंसर ऑफ फोर्थ इज नॉट, मैंने नॉट गिवन ही कहा था, फॉल्स नहीं है, यहाँ पे गलत फॉल्स लिखा है मैंने, श्रवणी।
सो आंसर ऑफ या लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, मैंने फोर्थ का नॉट गिवन ही कहा था, मैंने यहाँ पे फॉल्स गलत लिख दिया है, सो आंसर इज नॉट गिवन ओनली। ओके ओके, सो नाउ आई वांट यू पीपल टू रिमेन, बहुत मजा आएगा, एक छोटा सा रीडिंग का पैसेज है। या सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ डायग्राम जो होता है, एक छोटा सा डायग्राम वाला करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको समझाता नहीं हूँ, मैं चाहूंगा ये जो प्रोसेस, ये 1 2 3 4 आप मुझे बताए आंसर क्या है। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अगर ये डायग्राम वाला जो पैसेज आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे है, आपको ये लीफ जो है उसमें 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है और 4 कौन सा है, यू नीड टू फाइंड आउट, जिसको हम डायग्राम सैंपल कहेंगे। सर तो उसमें क्या करना है, कि अंडरलाइन कीजिए 4 चीजें, आपको 4 चीजें फाइंड करनी है। तो सर कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, तो डिफाइन करने के लिए देखिए कौन सा अंडरलाइन करेंगे। या या राजवीर, कैन यू रीड इट आउट फॉर मी? Yes, sir. ओके, Leaf structure. या फटाफट। Plants play a very important role in our surroundings. Trees provide us with fresh air, shade in summers, food, and other benefits without which we cannot even think of living. One of the most principal organs of a tree is a leaf. The ना leaf. आप बोलोगे सर कि ये 4 जो चीजें हैं वो कौन सी है, अब ये देखिए कैसे पता चलेगा, ऐसे वर्ड पे फोकस कीजिए, डायग्राम आता है कॉल्ड, इज, लेकिन अगर यहाँ पे लीफ पे करेंगे तो ये तो पूरा ही लीफ है, सो दैट मींस लीफ इज नॉट गोइंग टू बी द वर्ड व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। चलिए फिर। One of the most important principal organs of a tree is a leaf. The leaves are the organs of photosynthesis, a process when carbon dioxide is turned into oxygen. The structures of leaves are adapted for efficient photosynthesis. कोई भी वर्ड आया राजवीर, कोई भी वर्ड आया जिसमें 1 2 3 4 को कर सकते हैं हम? आई डोंट थिंक सो। No, ओके, sir. या Most leaves are broad and so have a large surface area, allowing them to absorb more light. Also, they are thin, which means a short distance for carbon dioxide to diffuse in and oxygen to diffuse out easily. देन The blade is the broad, हाँ, तो ये एग्जाम्पल देखो कैसे flat पता part चलता of है, ये the. तो पहला जो है वो ब्लेड। मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे आंसर्स इसी ऑर्डर में नहीं आएंगे, डायग्राम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है द आंसर नेवर कम्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो पहले ब्लेड, चलो मैंने टिक किया, फिर आगे बढ़ते हैं। Flat part of the leaf. हम्म, Photosynthesis occurs in the blade, which has many green food-making cells. हम्म। If you look closer at leaves, you will notice networks of thin threads. Those networks are called veins. ये दूसरा आ गया वेन्स, तो इससे पता चलता है कि ये भी शायद आंसर होगा किसी का। देन They support the structure of the leaf and transport substances to and from the cells in the leaf. The main vein of a leaf running down the center of the leaf is called midvein. हाँ, तो तीसरा जो हुआ वो हुआ मिडरीफ, द थर्ड वन इज गोइंग टू बी मिडरीफ। देन And the area of some plants that connects the plant stem and leaf is called petiole. एग्जैक्टली, चौथा भी आ गया पेटियोल है। देन The petiole is the pipeline through which the products of photosynthesis are moved from individual leaves to the rest of the plant and through which necessary chemicals and nutrients from other parts of the plant are brought to individual leaf. एग्जैक्टली अब मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको कीजिए, ये 4 आ गया, ये 4 जो है ये मैंने वापस कर रहा हूँ, 1 मिनट चालू रखिए, ये 4 आ गया। हाँ, अब निकालिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लेड, वेन्स, मिडरीफ एंड पिटियोल। नाउ आई वांट यू पीपल टू गिव मी क्विक आंसर्स, फटाफट आंसर्स दो। 1 का आंसर क्या है, यू नीड टू टेल मी। 1 2 3 4। मैंने पहले भी बताया था आंसर्स विल नॉट कम इन सीक्वेंस। या तो पहले का आंसर क्या आएगा, द फर्स्ट, पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, ब्लेड कौन सा है, ब्लेड इज द आंसर ऑफ व्हिच क्वेश्चन, which what is the answer of blade जो है यहाँ पे लिखा है, the blade is the broad flat part of the leaf, isn't it? तो ये हुआ थर्ड जो है आपका हुआ blade। okay, then if you look at the veins कौन सा हुआ, this network of thin threads, तो veins जो है network of thin threads, तो ये 1 पे किया हुआ है, कहीं पे एरो है ही नहीं, तो पहला जो होगा that is going to be veins। then the main vein of a leaf running down to the center, ये जो बीच की जो लाइन है जो सेकंड वाली है वो है is going to be midriff।
ये 3 तो खत्म हो गए, पता नहीं है चौथा कौन सा होगा, लेकिन चौथा पिटियोल ही बचता है. सो आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी पिटियोल. इज इट गेटिंग क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी एन आंसर. ये आपका आंसर है. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी वेन, सेकंड इज गोइंग टू बी मिडरीफ, थर्ड इज गोइंग टू बी ब्लेड एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी पिटियोल, पिटियोले. नाउ ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इट इज वेरी सिंपल. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिट टफर वन. थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे. चलिए, छोटा सा पैसेज है, इसको करना पड़ेगा. नीड टू गेट मी द आंसर्स ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6. चलिए 10 मिनट लगेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. डोंट रन अवे. लास्ट 10 मिनट्स. बताइए 1 2 3 4 5 6 का आंसर कौन सा है? वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा. देखो 1 2 3 4 5 6 कौन से है और उस हिसाब से जाइए. पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये जो 6 चीज जो है वो कौन सी है. सो लेट मी डू इट फॉर यू. ये 6 चीज कौन सी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. ये रही, मैंने रेड कर दिया है सबको. द यॉक, शलाजा, albumin सेल, एयर सेल एंड जर्मिनल डिस्क. सो इस हिसाब से जाएंगे तो इजी हो जाएगा. Just 1 minute and we'll check the answers. एक दो तीन चार पाँच. Done, students, everybody? Yes, shall we check the answers? Or you want some time? Yeah, 1 minute.
Okay, so let us check the answers now. So let us take the first one. Is it fine if we check out the answers? Is it fine? Shravan, you need to write in, the way you are writing the essay. Otherwise, I believe that you are giving computer-based testing. Okay. So the right, the way we usually write, काफी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं सर कैपिटल लेटर्स किस में लिखने हैं? कैपिटल लेटर्स आपको सारे कैपिटल लेटर्स सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग में ही लिखने हैं। ऐसे में तो आप वैसे ही लिखोगे जैसे आप बचपन से लिखते आए हो, पहला लेटर कैपिटल अगर है और प्रॉपर नाउन कैपिटल है, बाकी नॉर्मली यू कैन राइट इन द वे यू आर राइटिंग। यू डोंट नीड टू वरी, कर्सिव राइटिंग में भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, सो लेट अस गो अहेड विद दिस। राजवीर, कैन यू रीड द yolk? The yolk is a source of lecithin, an effective emulsifier. Yolk color ranges from a hint of yellow to a magnificent deep orange. ये और येलो वाला जो है वो तो एक ही दिखा के आ रहा है। सो आंसर ऑफ द ये जो है ये यॉर्क किसका आंसर होगा? इट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ फिफ्थ वन। तो फिफ्थ का आंसर होगा यॉर्क। देन सालाज़ार, या यॉर्क इज एंकर्ड बाय सर थर्ड है। हाँ, तो ये जो थर्ड जो है, ये जो स्पाइरल लिखा है, स्पाइरल रोप लाइक, तो रोप लाइक तो सिर्फ यही है, सो तीसरा ही होगा। सो थर्ड इज गोइंग टू बी सालाज़ा, मतलब ये सालाज़ा होगा, वो थर्ड का आंसर है। देन albumin is a thinner thick white part of the egg, so second जो होगा that is going to be हाँ the albumin कौन सा होगा? That is going to be the fourth one, isn't it? So yeah, which is inner thick white part of the this part, yeah, ये inner thick part। अब काफी बच्चे इसको टू को नहीं बोलेंगे तो, लेकिन टू गलत है, ये इनर थिक पार्ट है। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी albumin। देन शेल, शेल इज अ बाहर का है, तो फर्स्ट का आंसर होगा इज गोइंग टू बी शेल। एयर सेल इज एयर स्पेस दैट फॉर्म्स व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द एग कूल्स। तो ये जो होगा वो कौन सा होगा? एयर सेल किसका आंसर है? या ये रहा, देखिए यहाँ पे जो है वो लिखा है ना, इज लेड, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग इज लेड, द एयर सेल यूजुअली रेस्ट बिटवीन द आउटर इनर मेम्ब्रेन्स एट द एग्स लार्जर एंड। एग का जो छोटा सा एंड है और ये नीचे का लार्जर है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको एयर सेल कहेंगे। तो ये रहा गैप जो है दिख रहा है आपको। सो सिक्स का आंसर इज गोइंग टू बी एयर सेल। तो बचता एक ही है, जर्मिनल डिस्क। यहाँ पे लिखा है इट्स अ स्मॉल सर्कुलर व्हाइट स्पॉट। तो सेकंड का आंसर ये रहा, व्हाइट स्पॉट। तो सेकंड इज गोइंग टू बी जर्मिनल डिस्क। तो ये रहे आपके आंसर्स। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। The first is cell, the second is germinal disc, third is Salaza, fourth is albumin, fifth is yolk, and sixth is going to be air cell. Now, next time when I'll be taking a lecture, I'll be taking 5 to 10 minutes of very important things related to your visas. You can always, I will always have a Q&A. अगर आपको कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम में कौन से, एक शायद ये भी लो कि कौन से कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड यू आर गोइंग, which I think will also help you out in taking the right decision, because I am also educated BTech plus MBA, so I'll also give you important information कि कौन से कोर्स आप ले सकते हो ताकि आपको वर्क परमिट और PR मिले। Thank you so much students from being here. I hope you enjoyed the session, and in case if you have got any doubts, any queries, you can always give me a call next time. Yeah, मैं headings ले लूंगा, कोई बात नहीं, I'll take the headings next time, don't worry. Yeah, okay, thank you so much students, thank you, good night. Thank you sir, good night. Thank you Rajveer.